Okay, hello everyone, good afternoon. This is Vanna from the site, and let's start today's session. Your English class, right? So as usual, we will start from our vocabulary section. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम vocabulary section से start करते हैं class को, and you all know about that कि एक vocab का बहुत जो है वेटेज रहता है आपके एग्जाम्स में, तो आपके लिए vocabulary बहुत ज़्यादा important है, right everyone? Okay. So in today's class we will start from one word substitutions. हम one word substitution से start करेंगे, then further हम proceed करेंगे adverbs की exercise के ऊपर, right? As you all know that we have concluded that class, that previous class, we have finished our adverbs topic, right? So we will do exercises and worksheets on base that, okay? Let's start today's session. I think it is visible to everyone, right? Okay. Where is that another pen? All right, this is fine, no issue. First word देखेंगे हम kakistocracy, right? First word is kakistocracy. Kakistocracy means government by the worst citizen, okay? Government by the worst citizen. Right class? ये आपका एसएससी एग्जाम 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, ओके? यस. सेकंड वर्ड देखेंगे आप राइट. अभी बताती हूँ. I'll explain you. Wait. Catstry dephobia, right? Catstry dephobia means phobia से क्या रिलेट करते हैं आप? डर, राइट? डर है ना. अब डर किस चीज का डर है ना? तो डर है यहाँ पे कॉकरोचेस से, जिसको डर लगता है ना, उसी को हम कहते हैं ये, ठीक है? कुछ लोग होते हैं ना जिनको फियर ऑफ कॉकरोचेस होता है, ठीक है? फियर ऑफ कॉकरोचेस. ये आया है एसएससी एग्जाम 2021 में, and this is 2020, right? I'm also writing here. कैनल तो आप सभी जानते होंगे, अ प्लेस फॉर डॉग्स. पता है कैनल? KENNEL, कैनल. जहाँ पे डॉग्स को रखा जाता है, उनका जो घर होता है, ठीक है, उसको कहते हैं कैनल, ठीक है? यस. And Kindergarten garden also, you know about that. Okay. Kleptomania, very very important word. Kleptomania. Mark important this one, okay? Kleptomania. An abnormal desire to steal. Desire to steal. I'll explain you, all right? ये आया है आपका एसएससी एग्जाम 2023 में, all right?
Fourth one is लेलोफोबिया. लेलोफोबिया मीन्स होता है आपका फियर ऑफ स्पीड, जिसको स्पीड से डर लगता है. ओके, फियर ऑफ स्पीड. Oh wow, very very important. Lapidist. Lapidist. Lapidist means one who cuts precious stones. ठीक है, जो डायमंड्स वगैरह की कटिंग करते हैं, जो आपके जेमस्टोन्स की कटिंग करते हैं ना, वो. And I'm also fond of that. One who. You believe in precious stones? Gemstones or other some stones? Oh. I believe in that. Next word is legitimate. Don't get confused, class. This is G, okay? Legitimate. Responsible according to law. Responsible according to law. जिसको आप कहते हैं ना वैध, सुना है आपने? वैध और अवैध. यस, वैध. writing here. Do these, then we'll continue. Ritesh, when you make that na, so try to do that कि only this board portion and me covered, okay? Not the walls or entire things, okay? Lighting is perfect or any issue? Should I on that or it is fine? I have to on that. It is fine, na? Okay. Okay. Yes, you can. Okay, good morning everyone. Let's start today's session. We will discuss some important vocabs. Okay, so let's start with one word substitutions. So our first word is kakistocracy, right? Kakistocracy means government by the worst citizen, right? ऐसे होते हैं ना, काफी जो लोग होते हैं जो हमारी गवर्नमेंट के लिए अच्छे नहीं होते, हमारी गवर्नमेंट की बेहतरी के लिए अच्छे नहीं होते, हमारे देश के लिए अच्छे नहीं होते हैं, उनकी जो सरकार बनती है उसको हम कहते हैं कैकिस्टोक्रेसी, राइट? कैकिस्टोक्रेसी, राइट. नेक्स्ट देखिए कैट्सीडेफोबिया. कैट्सीडेफोबिया मींस होता है फियर ऑफ कॉकरोचेस. ऐसा शख्स, ऐसा इंसान जिसको कॉकरोचेस से बहुत डर लगता हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं, राइट. नेक्स्ट देखिए क्लेप्टोमीनिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. क्लेप्टोमीनिया मींस एन एबनॉर्मल डिजायर टू स्टील. ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको ना वो एबनॉर्मल होते हैं, एक्चुअली उनको एक डिजीज होती है, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ डिजीज ऑल्सो. कुछ चीज़ें चुराने की, जैसे कुछ प्रीशियस चीज़ें होती हैं, कुछ प्रीशियस चमकदार वॉचेस हो गई, स्टोन्स हो गए, रिंग्स हो गई, ठीक है, तो उनको ना ये हैबिट होती है कि वो उनको अपने पास चाहिए, स्टीलिंग, राइट. तो ये एक बीमारी भी होती है, एक डिजीज भी होती है, जिसको हम क्लेप्टोमीनिया कहते हैं, ठीक है. उसमें इंसान जो होता है वो बहुत एबनॉर्मल बिहेव करता है, वो चीज़ों को चुराने की कोशिश करता है, ठीक है, उसको हम क्लेप्टोमीनिया कहते हैं. नेक्स्ट देखिए लेलोफोबिया. मीन्स होता है फियर ऑफ स्पीड, यानी जिसको स्पीड से बहुत डर लगता हो,
ठीक है, उसको कहते हैं. नेक्स्ट, लेपिडिस्ट. लेपिडिस्ट मीन्स होता है वन हु कट्स प्रीशियस स्टोन्स. आपने देखा होगा कुछ जेम स्टोन्स वगैरह लोग वेयर करते हैं, जैसे मैंने भी वेयर किया हुआ है, राइट. तो कुछ लोगों को बहुत शौक होता है प्रीशियस स्टोन्स का, तो जो इस प्रोफेशन में फॉलो करते हैं उसको हम लेपिडिस्ट कहते हैं. यानी आपने देखा होगा डायमंड की भी कटिंग होती है, राइट, और पत्थरों की भी, नगों की भी जो कटिंग होती है स्टोन्स की, तो जो प्रीशियस स्टोन्स की जो कटिंग्स वगैरह करते हैं, उनको ठीक करते हैं, उनको हम कहते हैं लेपिडिस्ट. ऑलराइट. नेक्स्ट देखिए, लेजिस्टिमेट. लेजिटिमेट मीन्स होता है रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ. यानी पर्सन जिसमें वैध रूप से, कुछ होता है वैध और अवैध, यानी कानूनी और गैर कानूनी, राइट. तो जिस चीज के लिए इंसान वैध यानी रिस्पॉन्सिबल हो, और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, लॉज के लिए, हमारे कानून व्यवस्था के लिए जो वैध हो, उस जो रिस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेदार हो, उसी वर्ड को हम कहते हैं लेजिटिमेट. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके. क्या हुआ, हो गया? तो ये तो क्लियर हो गया होगा आप सभी को. चलिए फिर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं. नंबर 7, लेक्सिकोग्राफर. अच्छा, ग्राफर से क्या समझ में आता है आपको? हाँ एग्जैक्टली, ग्राफिक्स, फोटो से रिलेटेड, या संग्रह, कंपाइलेशन, किसी चीज को कंपाइल, मर्ज करना या कंपाइल करने से रिलेटेड, राइट. तो कंपाइल करने वाला, अब किसको कंपाइल करने वाला, राइट. तो दिस इज योर, हम इसको कहते हैं वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी. जो डिक्शनरी को कंपाइल करता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ये. वन हु compiles a dictionary. I'm highlighting this, okay? ये मैंने ए जो लिखा है ये हाईलाइट करने के लिए लिखा है. हिंदी में हम इसको कह सकते हैं कोशकार. हाँ. अच्छा, आप डिक्शनरी को हिंदी में क्या कहते हैं? नो नो नो, थोड़ा सा और सोचो. हाँ, डिक्शनरी को शब्दकोश. हम डिक्शनरी को कहते हैं शब्दकोश, ठीक है. तो शब्दकोश ये कह सकते हैं हम, और उसी डिक्शनरी को कंपाइल करने वाले को हम कहते हैं कोशकार, ठीक है. यस. ये जो वर्ड्स हैं आपके, हिंदी में भी पूछे जाते हैं, एक शब्दों के लिए एक शब्द, आप सभी जानते ही होंगे. राइट. लिबर्टिन. लिबर्टिन वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा सा सोचिए आप. सॉरी, लेक्चर. A person who leads an moral life. आपने एक शब्द सुना होगा अनैतिक. नैतिक और अनैतिक, राइट. तो ये है अनैतिक. लिबर्टिन को हम कहते हैं अनैतिक, जो नैतिकता के अनुकूल ना हो, ठीक है, उसको कहते हैं. नंबर 9, राइट. licentious, linguist. लिपोफोबिया. अच्छा, आज के टाइम पे ना एक चीज बड़े उसमें है कि लोगों को मोटे होने से बड़ा डर लगने लगा है ना.
आपने देखा होगा कि लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और उनको मोटे होने से बड़ा डर लगने लगा है. आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, मुझे भी लगता है कभी कभार. एंड वैसे तो मैं बहुत डाइट कॉन्शियस हूँ स्टिल दैन फिर भी. तो लिपोफोबिया उसी को कहते हैं फैट ऑफ फियर ऑफ गेटिंग फैट. ओके, फियर ऑफ गेटिंग फैट, फियर ऑफ गेटिंग फैट. ये आपका एसएससी एग्जाम 2023 में ही आया हुआ क्वेश्चन है. नंबर 10, लिथोलॉजिस्ट. अब एक बात बताइए, लिथोलॉजिस्ट हो गया, आर्कियोलॉजिस्ट हो गया, इन सभी से क्या समझ में आता है? जो किसी एक स्पेसिफिक चीज में स्टडी करने वाले हो, उसके ज्ञाता हो, उन्हीं से रिलेटेड है, राइट? तो अब लिथोलॉजिस्ट किससे रिलेटेड है? तो ये आपका रिलेटेड है वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ rocks and minerais. Number 11. अच्छा, ये वर्ड भी ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, लोकस्ट. आपने किसी कीड़े का नाम सुना है? इंसेक्ट का? लो, टिड्डी. हाँ, नहीं, टिड्डी टिड्डी अलग होती है. उसी को हम लोकस्ट कहते हैं. ठीक है, टिड्डी कहते हैं. वो ना हमारे जो फसल होती है ना, उसको नष्ट कर देती है. हाँ, वो नष्ट कर देती है, वो खा जाती है सारी फसल को. तो उसी को हम लोकस्ट कहते हैं. A kind of winged insect. नहीं, झिंगुर अलग होता है बेटा. टिड्डी ना फसल को नष्ट कर देती है, ये एक सीजन में कई बार आती है. तो ये सारी फसल को खा जाती है. मतलब बेसिकली ये ग्रीन जो लीव्स होती है ना, जो ग्रीन लीव्स होती हैं, उनको खत्म कर देती है. और फसल जो है ग्रीन ही होती है, वो खा जाती है. माइग्रेटिंग इन स्वैम्प्स एंड कंज्यूमिंग वेजिटेशन. जो आपकी वेजिटेशन को कंज्यूम कर लेती है, उसको कहते हैं हम. ये आपका जो है, ये आया हुआ है एसएससी एग्जाम 2023 में. अगेन 2023. यू डोंट बिलीव कि क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है और क्या आपसे पूछ लिया जाता है. कई बार आपको इसका आइडिया नहीं होता है. Who is taking GS right now? And maths? हम्म. हम्म. Your name is Kajal or what, dear? Kanchan, right?
You have subscribed my channel? I know about you. कमेंट्स भी कर दिया करें आप, है ना? थोड़ा सा मुझे काफ़ी टाइम हो गया एक्चुअली, आई एम नॉट एबल टू डू दैट कि मैं वीडियोस अपलोड कर पाती हूँ. हाँ, तो बट आई स्टार्ट डूइंग दैट. बट आई हैव डिसाइडेड कि कुछ ना इम्पोर्टेंट आपके रूल्स होते हैं, तो उसके शॉर्ट्स मैं अपलोड करूँगी जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट हो. आई डू दैट. डन. ओके, लेट्स स्टार्ट दिस. हाँ, बना लो, बेटर रहेगा. पार्ट 2 करके कर देते हैं इसका. Okay, class. We will start this part 2 of this one word substitutions. So first word देखेंगे आप लेक्सिकोग्राफर, राइट? अब ग्राफर से आपको क्या समझ में आता है? फोटोग्राफर हो गया या किसी भी चीज को कंपाइल करने वाला. अब फोटोज को कंपाइलेशन करने वाला कौन होता है? फोटोग्राफर होता है, राइट? तो किसी चीज को कंपाइल करने वाला ही आपका ग्राफर से रिलेटेड होता है. ओके, तो यहाँ पे देखेंगे आप लेक्सिकोग्राफर. लेक्सिकोग्राफर मीन्स होता है वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी. यानी आपने इंग्लिश में डिक्शनरी तो सुना ही होगा, हिंदी में हम उसे कहते हैं शब्दकोश, और इंग्लिश में हम कहते हैं जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है ना, उसको हम कहते हैं कोशकार. क्या कहते हैं? कोशकार. तो शब्दकोश से ही आपका ये कोश वर्ड आया है, जिसको हम कहते हैं कोशकार, यानी डिक्शनरी को कंपाइल करने वाला. ओके, उसी को हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफर. नेक्स्ट वर्ड देखिए लिबर्टिन. अब लिबर्टिन जो वर्ड है वो आपका एक लिबर्टी से रिलेटेड भी है, राइट? लेकिन यहाँ पे इसका जो मतलब है, जो इसका अर्थ है, वो बिल्कुल अलग है. यहाँ पे लिबर्टिन और लेक्चर का मीन्स होता है अनैतिक. आपने सुना होगा नैतिक और अनैतिक, यानी नैतिकता के अनुकूल और अनैतिक जो है उसके अनुकूल नहीं होता, उसको हम कहते हैं अनैतिक. अ पर्सन हु लीड्स एबनॉर्मल लाइफ, यानी ऐसा इंसान जो रूल्स के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को फॉलो ना करता हो, एबनॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ को फॉलो करता हो, उसको कहते हैं. लिपोफोबिया. लिपोफोबिया मीन्स होता है क्लास फियर ऑफ गेटिंग फैट. यानी कुछ लोगों को ना बहुत डर होता है. किस चीज का डर होता है उनको? फियर ऑफ फैट, यानी कि हम मोटे ना हो जाएं. और आजकल तो ये बहुत ज्यादा देखने के लिए मिला है हमें, तो कुछ लोग बहुत डाइट कॉन्शियस होते हैं बिकॉज ऑफ दिस ओनली. ठीक है, तो उनको कहते हैं हम लिपोफोबिया, जिनको फैट से बहुत डर लगता है. ठीक है, यस. नेक्स्ट देखेंगे आप लिथोलॉजिस्ट. लिथोलॉजिस्ट मीन्स होता है वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ रॉक्स एंड माइनरेट्स. आपने देखा होगा अलग अलग डिफरेंट तरीके के आपके रॉक्स पाए जाते हैं, माइनरेट्स पाए जाते हैं. ठीक है, उसी को हम कहते हैं आपका लिथोलॉजिस्ट. जो इनको ढूंढने वाले होते हैं, जो इनकी स्टडी करने वाले होते हैं, उनको हम कहते हैं लिथोलॉजिस्ट. जैसे आपके आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो पुरानी साइट्स को फाइंड आउट करते हैं, उसी तरीके से आपके लिथोलॉजिस्ट भी होते हैं जो आपके माइनरेट्स और पुराने रॉक्स को सर्च करते हैं. ओके, यस. नेक्स्ट देखेंगे आप लोकस्ट. लोकस्ट मीन्स क्या होता है? आपने एक बर्ड सुना होगा कभी, टिड्डी, जो है ये आपका रिलेटेड टू योर फार्मिंग. ओके, फार्मिंग से रिलेटेड वर्ड है ये. जो लोकस्ट होता है वो एक इंसेक्ट होता है. इट्स अ काइंड ऑफ इंसेक्ट जो आपकी फसलों को नष्ट कर देता है, खराब कर देता है. ओके, अ काइंड ऑफ विंग्ड इंसेक्ट migrating in swarms and consuming vegetation. यानी वो जो आपकी वेजिटेशन है, जो आपने फसल की है, उसको खा लेता है, कंज्यूम कर लेता है. उसी को हम कहते हैं आपका लोकस्ट. इज इट क्लियर टू एवरीवन? और आप सभी जैसे कि जानते हैं कि ये सभी जो है आपके PYQs हैं, जो ऑलरेडी आपके रिपीटेड हैं, जो एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं. ओके, और ये आपका आया हुआ है SSC एग्जाम 2023 में. ऑल राइट. Done, everyone? Okay, so we have finished this vocab section. Now we'll moving to our that topic, which is your adverbs, right class? ठीक है.
This is your choose the correct option. Okay. Question number A. Choose the correct option. First word, first देखेंगे आप. First one. She speaks English. Okay. She speaks English dash. Option A, fluent. Okay. Option B, fluently. Option C, more fluent. Option D, fluentness. It will be more interesting for you. ठीक है? हाँ. Second one देखेंगे. He reached the station. You can ask me, Kanchan, no problem. I'm bilingual. If you're facing any problem with English, I can speak in bilingual. You're saying my handwriting is not clear to you. More fluent लिखा है, fluentness लिखा है. Actually, this is cursive writing. Okay, you can take help of this, Ritesh. Okay, yes. हाँ, Nitesh. Which exam you're having in coming this? You have filled that? I think constables की भी तो निकली थी. कब तक है वो? हाँ. हाँ, ठीक है. ओह माय गॉड, मतलब मैं बता ही नहीं पाई कुछ स्टूडेंट्स को तो कि मतलब कांस्टेबल की भी निकली हुई. तो अब एक्सटेंड तो हुई नहीं होगी. ओहो. I think you should talk to sir. No issue, madam sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है. कल ही खत्म हुई है या 30 को खत्म हुई थी? 31 को. ऐसा कुछ होता है ना तो थोड़ा सा मुझे डाल दिया करो. वैसे तो मैं देखती रहती हूँ. अभी तो आपकी और भी वैकेंसीज आएंगी. इस साल पैट भी आएगा आपका. हाँ. नहीं, इस साल का भी आएगा ना. हर हर ईयर आता है ना पैट तो. हाँ, वो यूपी में थोड़ा सा रहता है. पैट का आई थिंक 12th पास. यू कैन 12th पास आप उसको कर सकते हो. हाँ, क्योंकि जो है और भी एग्जाम्स होते हैं ना. अगर कोई कांस्टेबल का फॉर्म भरना भूल गया है या वो नहीं भर पाया है, तुमने भी फिल किया है?
भर दिया? आपने भी फिल कर दिया? और शी हैज डन? तुमने फिल किया? यूपी कांस्टेबल का फॉर्म फिल किया तुमने? अच्छा, तुमने नहीं किया। ठीक है, तो जिसने नहीं किया है ना, वो अभी और भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी इस ईयर में, और भी चीजें हैं, उनकी तरफ आके फोकस करे, है ना। और पीसेस वगैरह निकालो, एक चीज पे मत अड़े रहो। जब आपको पता है कि आप अपना इतना पोटेंशियल यहाँ पे दे रहे हो, तो थोड़ी सी मेहनत करके और थोड़ा सा कर लीजिए, क्या पता आप वहाँ पे और अच्छा कर सको। जब आप पीसेस के लेवल की तैयारी करते हैं ना, तब आप ऐसा ही निकाल पाते हैं, ये ध्यान रखना मेरे वर्ड्स। हाँ। नहीं, बट मेरे कहने का मतलब ये था कि जब आप पीसेस के लेवल की हार्ड वर्क करोगे, तब आपको फिर ऐसा ही मिलेगा। अभी रेलवे की भी तो वैकेंसीज आएंगी, आई थिंक सो आपकी अभी निकली है वो जस्ट। ओके, तो कब तक है उसका लास्ट डेट और वो सब? हम्म। तो आपने फिल कर दिया या अभी नहीं किया है? उसको भी फिल कीजिए। ये मत सोचिए कि वो ग्रुप डी है। हम्म, हम्म। अब इस बार क्या किया है इन्होंने? तो हो सकता है आपकी आरपीएफ की भी निकले, रेलवे पुलिस फोर्स की। हम्म, अभी तो अपना कैलेंडर भी पास आउट करेंगे ना। बजट आ गया, आ जाए। हाँ, फर्स्ट फेब को ही मोस्टली रहता है। यू नो, पता है, जो भी आपके जो भी आपके टीचर्स होते हैं ना, जो भी वो ना हमेशा आपको आगे ही देखना चाहेंगे कि ये हमारे स्टूडेंट थे, और अब ये इतनी अच्छी जगह सेटल्ड हैं, वेल सेटल्ड है। कौन? अच्छा, आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे उसके बारे में नहीं पता है। बट मेरा कंसर्न कहना ये है कि जब आप वो करते हो ना, जो टीचर्स होते हैं ना, वो हमेशा जस्ट लाइक योर पेरेंट्स, वो हमेशा चाहेंगे कि मेरा स्टूडेंट आगे बढ़े, आपको हमेशा आगे देखना चाहेंगे, है ना। तो दैट इज माय पॉइंट। सो आई ऑल्सो वांट दैट कि आप लोगों का सिलेक्शन हो और आप लोग आगे निकले, है ना। बट उसके लिए बहुत ज़्यादा ना अपने एफर्ट्स डालिए। बी एम्बिशियस, बी ग्रीडी, मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है। ठीक है। आपको जब अपने सपनों की भूख नहीं होगी, आप खुद अपने सपनों के लिए सीरियस नहीं होंगे, तो दूसरे वाले कैसे बिलीव कर लेंगे आपके ऊपर? नहीं करेंगे ना। बट टीचर्स आर दोज वन कि वो अपने बच्चों पे सबसे पहले विश्वास करते हैं, एंड जस्ट लाइक पेरेंट्स, राइट। समटाइम्स पेरेंट्स नॉट, कई बार पेरेंट्स नहीं करते हैं कि अरे ये तो नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगी, बट टीचर्स के अंदर ये चीज़ें होती हैं कि वो जानते हैं कि ही और शी कैन डू, वो कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज माई पॉइंट। As you all know that I teach in that school also, right? So some things were like that कि मैम ये बच्चे नहीं कर पाएंगे, but my point is that यही बच्चे करके दिखाएंगे। So just be positive and चीज़ों को अलग तरीके से देखने की कोशिश करें, उनको पॉजिटिविटी को लें, ठीक है। एंड आई थिंक जो आज नहीं आ रहे हैं सेशन को अटेंड करने के लिए, they were losing something, है ना। That is my point. Because it's not like it 1.5 hour or 2 hour doesn't take so much of time. अगर आप 2 घंटे दिन के नहीं निकाल सकते एक सेशन के लिए, तो इतनी बड़ी बात नहीं है आपके लिए निकालना। हम्म, हम्म। Problem is not that, problem is that कि English is a commercial language.
अगर आप इंग्लिश को नहीं सीखेंगे ना तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों में ना बहुत प्रॉब्लम फेस करेंगे, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट कि सिर्फ एक कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हो तो आपको इंग्लिश उसके बेसिस पे पढ़नी है, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। इंग्लिश तो बहुत ज्यादा कहते हैं ना आज आपके लिए वाटर है, कि अगर इंग्लिश नहीं आती तो फिर आपके लिए सरवाइव करना आज के टाइम पे थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट इज माई पॉइंट, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में चले जाएं तो ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। चलिए फर्स्ट देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज क्लास दिस, शी स्पीक्स इंग्लिश। अच्छा एक बात बताइए, मैंने जब आपको टेंस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जिस टेंस में एस या ईएस लगता है वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। कौन से टेंस होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट का नाम भी देते हैं, ठीक है। इसको हम सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए शी स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है। अब आपको इसमें क्या बताना है? एडवर्ब बताना है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई है कि जब भी हम एडवर्ब की बात करते हैं तो ज्यादातर वर्ड्स पे हम क्या लगाते हैं? एल वाई लगाते हैं, राइट। तो जब हम एल वाई लगाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट वर्ड है आपका फ्लुएंट, राइट। तो फ्लुएंट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो बेसिक फॉर्म हो गई उसकी। अब फ्लुएंटली क्या है? एक एडवर्ब हो सकता है। मोर फ्लुएंट, ये आपकी कौन सी है? कंपैरेटिव डिग्री। एंड आई डोंट थिंक सो कि हमें कंपैरेटिव की नीड है क्योंकि हम यहाँ पे कंपैरिजन तो कर ही नहीं रहे हैं। तो दो ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं, ठीक है। फोर्थ वन देखिए फ्लुएंटनेस। फ्लुएंटनेस नहीं हो सकता है क्योंकि हम यहाँ पे किसी चीज को एक्सेसिव वे में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। सो हियर द राइट आंसर इज योर फ्लुएंटली, राइट क्लास? I hope you all understood. Okay. Next देखिए, he reached the station dash to catch the train. Okay. अब यहाँ पे बात हो रही है आपकी कि वो स्टेशन तक पहुंच गई थी, किसको कैच करने के लिए? ट्रेन को कैच करने के लिए। ओके अब आप यहाँ पे मैंने आप थोड़ा सा याद कीजिए, जब मैंने आपको इनफ के रूल्स लिखवाए थे तो मैंने आपको क्या लिखवाया था? थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि मैंने इनफ के रूल्स लिखवाए थे, पेजेस को थोड़ा पलटिए, देखिए क्या लिखवाए थे। हाँ एग्जैक्टली, इनफ कम्स आफ्टर एडजेक्टिव। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ही रीच द स्टेशन डैश टू कैच द ट्रेन। ओके जो इनफ है वो आपका किसके बाद आएगा? एडजेक्टिव के बाद में आएगा, ठीक है। अब उसके बाद वाली लाइन पढ़ो जरा, और क्या रूल्स लिखवाए थे मैंने आपको? नो नो नो, उसी में मैंने कुछ और भी लिखवाया था एडजेक्टिव। नहीं, थोड़ा सा और रीड कीजिए, फुल सेंटेंस। थोड़ा सा रूल्स को रीड कीजिए, रूल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट रूल्स, टॉकिंग अबाउट रूल्स। आई वांट दैट लाइन। आई नो बट मैं आपसे सुनना चाहती हूँ क्योंकि आपको चीजें रिमाइंड करनी है, तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके लेट मी टेल यू इफ यू डोंट गेट इट। हाँ यू स्किप दैट क्योंकि आप लिखना भूल गए हैं, फिर से बताती हूँ। हाँ मैंने लिखवाया था enough comes after adjective and before a adverb. This was rule. Okay. If you get it, it's okay. मिला आदित्य? ओके तो अब इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, जरा ध्यान से देखिए, तो जो इनफ है वो आपका एडवर्ब से पहले आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वाला केस देखिए, इनफ अर्ली, हो ही नहीं सकता, गलत हो गया पहला ऑप्शन, क्योंकि एडवर्ब से पहले हमें चाहिए, ठीक है। दूसरा देखिए अर्ली इनफ, तीसरा देखिए टू अर्ली, ये भी नहीं हो सकता, ज्यादा ज्यादा पहले, ये तो मीनिंग ही चेंज हो रहा है। वेरी वेरी अर्ली, ये भी गलत है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अर्ली इनफ। ओके यस, स्टेशन, यस अर्ली इनफ, so this answer is correct. Okay नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज योर दिस,
The patient is feeling dash better today. Okay. Very better today doesn't make any meaning. Okay. Much better today can be. Too better today wrong. क्योंकि आपको मैंने बताया था टू के लिए रूल होता है कि ये नेगेटिव के लिए यूज होता है और अधिक दिखाने के लिए किसी चीज को, तो एग्जेसिव के लिए। तो यहाँ पे नेगेटिव तो हम कुछ भी दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। मोर बेटर टुडे, नो, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप थोड़ा सोचिए जरा, गुड बेटर बेस्ट, है ना। तो एक ही डिग्री आएगी, दूसरी तो आ ही नहीं सकती। तो आंसर इज योर मच, मच बेटर। डन एवरीवन? हाँ। Okay, I repeat. ये Aditya, you are having na? You have written? Just show her. He'll tell you. Because we have to move. Okay? Let's proceed. How many we have done? 3, right? Number 4. The teacher explained the lesson. Kanchan got it? नहीं मिला? Okay. Wait, I'll tell you. No issues. B. Clearly. Abhi is coming in the class or not? In weekdays? Regularly or sometimes? Okay. Clearing. He was asking me. Number 5. The boy ran dash than his friend. Fast. Faster. Fastest. More fast. Do these questions. Aditya, you are some confused. An issue? Okay. नहीं, मुझे लगा ऐसा शायद. Anything not related to this one, you can share with me. No issues. Okay. You know what, I have seen a good thing in her, that at least she's trying. At least she's trying to speak English, or whether it should be correct or whether it should be wrong, that I appreciate. Some students were like they're having so much of fear कि अगर हमने गलत बोल दिया तो लोग क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे. उसके अंदर वो चीज़ नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है. हम्म. हम्म. वो अच्छी चीज़ होती है.
Okay, here is a rule that is enough comes after adjective. यानी जो enough होगा वो हमेशा आपका एक adjective के बाद में आएगा. हाँ, यानी adjective के बाद में आएगा. तो what we have written? What we have written? He reached the station early enough to catch the train. Early enough to catch the train. Okay. So मैम catch मतलब verb. तो मैम वो verb हमेशा बाद में आता है. हाँ, जैसे एक और है इनफ, ही इज इनफ स्ट्रॉन्ग, है ना? तो ये गलत है. ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ, पहले एडजेक्टिव उसके बाद एडवर्ब. हाँ हाँ, ओके, आई एम राइटिंग, है ना? आई एम राइटिंग हियर, ही इज इनफ स्ट्रॉन्ग. तो ये गलत है. ये क्यों गलत है आप देखिए यहाँ पे. स्ट्रॉन्ग क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग क्या है? नो, एडजेक्टिव है. स्ट्रॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव है. और अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो इनफ है वो हमेशा किसके बाद आएगा? एडजेक्टिव के बाद में आएगा, राइट? तो ही इज स्ट्रॉन्ग क्योंकि इनफ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग. ये हो गया. एंड इन दैट केस एक बार फिर से आते हैं उस वाले क्वेश्चन पे. यस, दिस वन. हम इस वाले क्वेश्चन में अगर देखें तो एडजेक्टिव के बाद में एडवर्ब आएगा ना. बेसिकली हम यही तो कहना चाह रहे हैं, या हम क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, एडजेक्टिव के बाद में एडवर्ब आ रहा है ना? ये है पॉइंट. तो अर्ली हो तो गया, अर्ली एडवर्ब हो गया और ये इनफ हो गया, ठीक है. लेकिन यहाँ पे इस केस में ना आपको एडजेक्टिव नहीं दिया है, ये केस अलग है. पहले आप इसको कीजिए, मैं इसको फिर बताती हूँ आपको, ठीक है? हाँ, कुछ केसेस अलग होते हैं, ठीक है. आई विल एक्सप्लेन यू. Done? Okay. So the teacher explained the lesson. Clear, clearly, clearness, clearing. It's very easy. Clearly. Okay. Next word देखिए. The boy ran dash than his friend. अब यहाँ पे कौन सी डिग्री आ रही है? Comparative डिग्री, क्योंकि हम comparison कर रहे हैं. अच्छा, किसके साथ comparison कर रहे हैं? The boy ran dash than his friend. एक ही फ्रेंड है, एक ही फ्रेंड के साथ कंपैरिजन हो रहा है. कंपैरेटिव डिग्री ले लेंगे. और एक अच्छा थोड़ा सा याद करो, मैंने आपको एक केस बताया था फास्ट के साथ. याद करो क्या बताया था फास्ट के साथ, जो केस आपको बताया गया था. नहीं, थोड़ा सा और सोचो. मैंने एक एक्सेप्शन बताया था आपको, याद कीजिए. फास्ट के साथ एक एक्सेप्शन बताया था, याद करो. फास्ट के साथ एक्सेप्शन ये था कि फास्ट कभी भी अपने साथ एलवाई नहीं लेता है. याद आया? तो आप कभी भी फास्टली नहीं लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फास्टर, क्योंकि हम यहाँ पे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं. क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. दिस इज योर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हमें इसमें एडवर्ब यूज करने हैं, ठीक है. बिफोर दैट वी आर हैविंग सम मोर एक्सरसाइजेस. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब. तो ये तो बहुत इजी है, मैं आपसे वर्बली पूछ लेती हूँ थोड़ा सा, ठीक है. आई एम स्पीकिंग, यू हैव टू टेल मी आंसर. ओके, फर्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब में शी विल कम टुमारो. टुमारो. टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. एडवर्ब ऑफ टाइम. हाँ,
यस, इसीलिए तो मैं आपको लिखवा नहीं रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही वर्क्स ऑनेस्टली। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछिए, कैसे काम करते हैं, हाउ। डब्ल्यू एच फैमिली, इंटेरोगेटिव नहीं, डब्ल्यू एच फैमिली का कौन सा वर्ड आ रहा है, हाउ। याद करो, डब्ल्यू एच फैमिली का हाउ वर्ड आएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, एग्जैक्टली, एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस वन, द बेबी क्राइड लाउडली। ओके, द बेबी क्राइड loudly. Tell me the answer. What? Again, adverb of manner. कैसे रो रहा है बच्चा, हाँ, कैसे रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है, loudly, loudly. How? Again question, how का adverb of manner, right. Next question है आपका, this one, I always wake up early. बहुत इजी है, I always wake up early. फ्रीक्वेंसी, राइट, मैंने बताया था कंसिस्टेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। हाँ, इस केस में आपका टाइम भी हो सकता है, और दिस वन आल्सो। हाँ, I'll tell you, वेट, हम देखेंगे इसको, बट इन दिस केस इट इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इन दिस केस इट इज फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। हाँ, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, डिग्री, डिग्री को कहाँ ले जाओगे, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, राइट, डिग्री भी तो कहीं ना कहीं लगाओगे ना, तो दिस इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड having with more fun and interesting questions. Next देखते हैं, this one, error and detection. Okay, error and detection. Yes dear, yes you can ask me. हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो इम्पोर्टेंट है, तभी तो लिखवाए गए हैं आपको, वो एडवर्ब के ही तो वर्ड्स हैं, वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है ना, तो लिटिल हो गया, लिटिल क्या हो गई, छोटी अमाउंट, है ना, वो लेस हो गया, ये सब आपका उसी में तो आ जाएगा। इसमें एरर और डिटेक्शन बताना है आपको। चलिए सेकंड वन देखते हैं, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, जल्दी करना है थोड़ा सा। थर्ड वन, द ट्रेन अराइव्ड लेटली, ट्रेन arrived lately. Fourth one, I'm too glad to meet you. Too glad to meet you. Number 5. He is enough strong to lift the box. Start doing. ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है।
ट्राई टू टेल दैम कि 2 आवर्स की जो क्लास होती है वो बहुत बेनिफिशियल होती है आपके लिए, एंड इट्स नॉट एनी मतलब इतना बड़ी कोई बात नहीं है कि आप संडे 2 घंटे नहीं निकाल सकते हैं. ओके, डन. टेक योर टाइम, नो इशू. लिफ्ट द बॉक्स, उठाना है ना, किसी बॉक्स को उठाना. हो गया मेरे को पता. ओके, रुतेश एक छोटी क्लिप बना लीजिए, ठीक है, इफ पॉसिबल. In this form, vertical. Try to do that, not covered full portion. Podium, Yeah. no problem. But try to do that. Okay, this portion will covered. Okay, only half, not full one. Full, no issue. हाँ, इसीलिए ना vertical. It should be vertical. Let's start. ओके क्लास, आज हम जानेंगे एरर एंड डिटेक्शन में एडवर्ब्स को कैसे यूज किया जाता है. ठीक है, जैसे कि हम सभी पहले देख चुके हैं कि जिसमें हम एलवाई लगाते हैं इन मोस्ट केसेस, वहां पे हम उसको एडवर्ब मान लेते हैं. बट देयर आर सम रूल्स, कुछ रूल्स भी होते हैं जो अपनी जगह लिए जाते हैं. ठीक है, फर्स्ट देखेंगे आप, ही ड्राइव्स वेरी केयरफुल. तो केयरफुल क्या है, आपका एक एडजेक्टिव है, बट हमें एडवर्ब लगाना है केयरफुली, राइट, केयरफुली. ओके, नेक्स्ट देखेंगे आप, under which she sings beautiful, again beautifully. Next one, this, the train arrived lately. Lately is wrong, it will be late, only late. Okay, exception. Yes, I'm too glad to meet you. अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, टू जो है वो नेगेटिव को दर्शाता है और एक्सेसिवनेस को दिखाता है, तो it will be take very, very. नेक्स्ट, ही इज इनफ स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट द बॉक्स. अभी हमने जो रूल डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, सबसे पहले एडजेक्टिव आएगा, राइट. तो जो स्ट्रॉन्ग है वो इधर आ जाएगा और जो इनफ है वो बाद में आ जाएगा. ठीक है, तो इट विल बी लाइक स्ट्रॉन्ग, he is enough, he is strong enough to lift the box. ठीक है, तो this one is done. All of you got it. Any doubt or any query you are having, you can just ask me if any you are having. Kanchan, you are having any doubt? Okay. It's just a 2 minute, just 2 minutes. हाँ, हमें जरूरत नहीं है कि हम हर चीज में आर्टिकल को बिल्डअप करें या लगाएं. ठीक है, डन. ऑल ऑफ यू हैव डन. हाँ, किसकी, ब्यूटीफुल.
ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल जो है बेटा एक एडजेक्टिव है, ठीक है, हाँ, लेकिन हमें यहाँ पे क्या लगाना है, देखो जैसे ये ब्यूटीफुल है, ये क्या था हमारा एडजेक्टिव था, तो ये गलत था, तो इसलिए हमने इसको काट दिया, इसकी जगह मैंने इसका करेक्शन लिखा, यानी जो सही है, तो मैंने करेक्शन क्या लिखा, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली क्या है हमारा एडवर्ब है, ठीक है, यस, तो वो कैसा गाना गाती है, ब्यूटीफुली गाती है, ठीक है, दैट इज माय पॉइंट, ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, राइट, we will continue in the next session, in the next class. Till then, take care. Thank you so much for your patience, everyone. Thank you.